مسیح خدا کے پاک مبارک نام میں آپ کی سلامتی ہو. ہاللیلویا. مبارک خدا باپ جس نے ہمیں تندرستی دی اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں. بعض اوقات ہم کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں مگر خدا جو وعدوں کا سچا ہے اس کے اپنے طریقے فیصلے اور وہ اپنے انداز سے کام کرتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ہر ایک کو اپنے قدموں میں آنے کی توفیق نہیں دیتا. جن پر وہ رحم کرتا ہے جس پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے ان کو وہ اپنے قدموں میں بلاتا ہے. مبارک بات خدا. توبہ کی توفیق, توبہ کی طرف راغب ہونا, یہ بھی خدا ہر ایک کو نہیں دیتا. خدا انسان کی نیچر کو دیکھتا ہے, سوچ کو دیکھتا ہے, پھر خدا توفیق دیتا ہے کہ ہم خدا کے قدموں میں آئیں. مبارک ہے وہ جو خدا کے قدموں میں آتے ہیں اور مبارک ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کو دی ہیں. ہاللیلویا. انہی کے لیے یسوع نے کہا ہے جب میں اپنے تخت عدالت پر بیٹھوں گا کہوں گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں, یہ بادشاہی میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے, اسے لے لو. مبارک وہ لوگ جو خدا کی بادشاہی کے لیے محنت کرتے ہیں, جان فشانی کرتے ہیں, کوشش میں لگے رہتے ہیں. آئے میرے ساتھ آج ایمان کی کتاب میں ہم کچھ دیکھیں گے اپنی بھلائی بہتری کے لیے. 12واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات. ہاں جی, جماعت میں سے کوئی بھی پڑھے. جماعت میں سے کوئی بھی. اعمال کی کتاب 12واں باب پہلی آیت سے 5ویں آیت تک. اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ آیا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا. جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا. اور یہ عید فطیر کے دن تھے اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہلو میں رکھا, اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. بس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہوتی رہی تھی مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. آمین. خدا ان کی برکت ہو. ہاللیلویا. اگر ہم توجہ کریں گے تو برکت لے کر جائیں گے. اس واقعہ پر غور کریں. اعمال کی کتاب یہ رسولوں کے اعمال ہیں, یہ رسولوں کی کارکردگی ہے. جو کچھ رسولوں نے ان 12 رسولوں نے کیا وہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے شاگرد تھے ان سب کی باتوں کو لکھا گیا اور ترتیب سے لکھا گیا. اور یہ لکھنے والا لوکا ہے. اور لوکا کے بارے میں نے کئی بار بتایا, لوکا ایک رومی سپاہی تھا, رومی آرمی کا افیسر تھا اور یہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر, آرمی کا ڈاکٹر تھا. یہ انطاکیہ میں رہا کرتا تھا. وہاں خدا کے ایک بندہ یولیس سے ملاقات ہوئی اور اس نے یسوع کے بارے اسے گواہی دی. اور اس کے بعد انطاکیہ میں یہ جب واقعہ ہوا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اعمال 12 باب میں, تو یہاں لکھا ہے کہ اس وقت کلیسیا پر ہاتھ ڈالا گیا. کلیسیا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جو یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ کلیسیا کہلائے, کیونکہ کلیسیا کا مطلب بلائے ہوئے لوگ.
यानी जिनको यीशु ने अपनी बादशाहत के लिए बुलाया, वो एक गिरोह बनता गया। आपने अमाल की किताब तो दूसरे बाब 36 आयत से 40 आयत तक जब पढ़ा तो वहां लिखा है, पतरस के पहले वाज, पतरस की पहली तकरीर, पतरस ने जब पहली बार कलाम किया तो तकरीबन बड़ी तादाद में लोगों ने यीशु को कबूल किया और वहां 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। ये पतरस का पहला वार जब बाला खाना पर ये जमा थे, जब ठहरे हुए थे। यीशु ने कहा था, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। वो ठहरे हुए थे, दुआ कर रहे थे। 10 दिन हो गए उनको दुआ करते, वो रात दिन दुआ कर रहे थे। खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ, खुदा ने उन्हें कुव्वत दी, रूहुल कुद्दस ने कुव्वत दी। पतरस उठा, कलाम करने लगा, अपनी बालकनी में खड़े होकर नीचे बाजार का लोग सुनने लगे। क्यों लोग इकट्ठे हो गए? असल में एक अजीब वाकया हुआ था, और वो अजीब वाकया ये था, पतरस अपनी जुबान में कलाम कर रहा था। नीचे जितने लोग तो उनको अपनी अपनी जुबान में समझ आ रही, क्योंकि अगर यरूशलेम के बारे में हम जानते हैं, हमें मालूम होगा ये इंटरनेशनल शहरों की तरह शहर था। यहाँ दूर दूर से लोग कारोबार के लिए आते थे। यहाँ यूनानी और कौमों के लोग बड़े आबाद थे। सबसे ज्यादा यहाँ यूनानी लोग थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कई बार तालीम देकर कहा, निजात कौन पाएंगे? पहले यहूदी, फिर यूनानी और फिर सारे लोग। तो यूनानियों का यहूदियों के बाद दूसरा नंबर है, क्योंकि यूनानी पूरी तरह बनी इसराइल में पवित्र थे। लेन देन, शादी ब्याह, ये सब कुछ इन्होंने कर लिया था और वो मसीह पर ईमान लाए। और यूनान आज मसीही मुल्क है। तो मेरा बताने का मतलब ये है, पतरस ने पहला आवाज किया, पहली दफा कलाम सुनाया, और वहां जो अजीब मैं बात करने लगा था, अजीब काम जो हुआ जब पतरस कलाम कर रहा था वो ये था, पतरस अपनी जुबान में बोल रहा था और नीचे हर एक को अपनी अपनी जुबान में समझ आ रही थी, और वो हैरान हुए, ये बोलने वाला गलीली यहूदी, और हम अपनी अपनी जुबान में अजीब काम सुनते हैं। इसलिए फिर उन्होंने सुना यीशु के बारे में, ईमान लाए, और एक बड़ी तादाद 3000 लोगों ने यीशु को कबूल कर लिया। यूं पतरस बड़ी दलेरी से लोगों के पास जाता, कलाम करता। अगर आप अमाल की किताब का मुतालिया करें, ये दोपहर को इबादत में हैकल जाते थे, यूहन्ना और पतरस, जो यरूशलेम में खुदा के खादम रसूल रहते थे, बाकी दूसरे इलाकों में दूर दूर जाते थे, और ये वहां यहूदियों को कलाम सुनाया करता था। तो यहां लिखा है, कलीसिया पर हाथ डाला गया। यहूदियों ने देखा कि जिस तरह लिखा है कि तुमसे कुछ बन नहीं पाता, देखो जहां उसका पैरों हो गया। लोग यीशु पर ईमान ला रहे थे गैर कौमों में, और यहूदी और मसीहत बढ़ती जा रही थी, बढ़ रही थी मसीहत। पहले थोड़े थे, फिर 120, फिर 3000 से बाद आगे लिखा है 5000, और फिर यूं बढ़ते गए, और लोगों को कलाम सुनाते और जाकर इबादत खानों में बहस करते थे, और लोग बढ़ रहे थे। और वो यहूदी जो मसीह पर ईमान नहीं लाए थे, तो वो परेशान थे। हमारी सारी आमदनी जाती रहेगी, हमारी चौधराहट जाती रहेगी, हमारा बड़ापन जाता रहेगा। ये तो मछेरे, मसूल लेने वाले छोटे छोटे लोग यीशु की मुनादी कर रहे हैं, मोजदे हो रहे हैं, फिर तो हमारी हैकल बंद हो जाएगी, फिर हमारे इबादत खाने बंद हो जाएंगे, कुर्बानियां बंद हो जाएंगी, हमें लोग देना बंद कर देंगे, हमारी इज्जत करना बंद कर देंगे। उन्होंने फिर एक मशवरा किया, इनको खत्म करें, इनको यहूदियों, उन यहूदियों को जो मसीह पर ईमान लाए, वो लोग जो मसीह पर ईमान लाए, इनको खत्म करें। फिर तब उन्होंने ये काम किया, कलीसिया पर हाथ डाला, बहुतों को कत्ल किया, बहुतों को मारा,
उनके घर छीन लिए, उनका माल मवेशी छीन लिए और याकूब को कत्ल किया। ये याकूब कौन था? ये अगर आप मत्ती की इंजील 19वां बाब पढ़े तो वहां लिखा है याकूब और यूहन्ना ये दोनों भाई हैं। इनकी माँ का नाम सलोमी है जो यीशु के कदमों में गिरी और जिसने कहा, ऐ खुदावन तू कह दे जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मेरा एक बेटा तेरी बहनी बैठे और दूसरा बाईं तरफ। ये वो याकूब है, यूहन्ना का भाई, वो यूहन्ना जिसने मुकाशवा की किताब लिखी और जिसने 3 खत लिखे और जिस यूहन्ना की बात कर रहे हैं उसका भाई याकूब था। दलेर बहादुर, ये यूहन्ना से बड़ा, और इसको उन्होंने पकड़ा, कत्ल कर दिया। उन लोगों ने जो मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, जब इसको कत्ल किया फिर उन्होंने पतरस को पकड़ा और जेल में डाल दिया और कलीसिया को बहुत मारा। लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। आए और देखें ये कहाँ लिखा है, अबरानियों 12वां बाब, अबरानियों 10वां बाब, ये खत भी यहूदियों को लिखा गया। 36 साल से अबरानियों का खत 10वां बाब 36 आयत से यूं लिखा है, लेकिन उन पहले दिनों को याद करो कि तुमने मनवर होने के बाद दुखों की ऐसी करकटा उठाई कि कुछ तो यूं कि लान कान और मुसीबतों के बायस तुम्हारा तमाशा बना, कुछ यूं के तुम उनके शरीक भी हुए जिनके साथ ये बदसलूकी हुई थी। चुनाचा तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दैनी ममलुकत है। बस अपनी दलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीजें हासिल करो। और अब बहुत थोड़ी मुद्दत बाकी है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। जब बाद में खत लिखा उस वाकया को याद किया, जब पतरस को कैद में डाला गया, याकूब को कत्ल किया गया जो हमने ईमान में पढ़ा है, उसी का अबरानियों में फिर जिक्र हुआ और फिर उनको तालीम देते हुए रसूल लिख रहा है अबरानियों को, यहूदियों को जो मसीह पर ईमान ला, याद करो उन दिनों को जब तुम पर मुसीबत पड़ी थी और तुम्हें यरूशलेम छोड़ना पड़ा, अपना माल दौलत सब लुट जाना मंजूर किया, मगर पछतावा नहीं किया कि हम क्यों मसीह हुए। और ये क्या हुआ, करीब करीब इलाकों में दूर दूर चले गए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ खुदा खुद करता है, जब हम खिदमत के लिए ना निकलते तो फिर कोई ऐसे वसीले खुदा बना देता है कि वो फिर कैदों में भी डाल देता है। जो इंसान खिदमत के लिए अपने आप को दे देता है और फिर खिदमत नहीं करता, अपने आप को खिदमत के लिए दे देना, मखसूस हो जाना, खिदमत के लिए वादा कर लेना और फिर लापरवाही करना और फिर सोचना कि मैं वापस ही आ जाऊं तो बेहतर है, फिर वो खुदा वापस नहीं आने देता, फिर खुदा बैठने भी नहीं देता। ये मैं आपको बता दूं, जो लोग खिदमत में हैं, जी मादरियों सुनो जरा गौर में, हाँ जी बहनों, एल्डर साहब, हाँ जी साहब जरा मेरी बात सुनो, डीकन साहब किधर गए, एल्डर साहब, जब हम खिदमत में आ जाते हैं फिर जब पीछे हटने की कोशिश करते हैं ना, मार पड़ती है। ये मैं आपको बता दूं, ये कलीसिया ने ये काम उठा लिया था, इन्होंने खिदमत का वादा किया था और फिर कमजोर पड़ गए, फिर खुदा ने किया, दुश्मनों ने हाथ डाला
और मारा, कत्ल किया रसूल को, एक रसूल को जेल में डाल दिया, पतरस को, उनके घर लूट लिए, माल लूट लिया और उनको अपने घर छोड़ के वहां से भागना पड़ा और करीब करीब शहरों में चले गए। तो हमें आगे जब पढ़ते हैं इसी अमाल में भी, खतों में भी फिर मिलता है, ये काफी सारे इलाकों में चले गए और बहुत सारी बड़ी तादाद अंताकिया में चली गई। अंताकिया तुर्की में अंदर एक शहर था और जब ये अंताकिया में गए तो उस वाकया को जब हम पढ़ते हैं, फिर ये क्या करते थे, किसी ने किसी से घर किराए पे लिया, किसी ने किसी को रख लिया, किसी के आगे मिन्नत की, भाई हमारा घर लुट गया, हमें रहने दो, लोगों ने इन्हें जगह दी। और जब ये थोड़े सेट हो गए फिर इन्होंने घरों में इबादतें शुरू की, घरों में ऐसी इबादतें शुरू की, रोज हर गली में 2-2, 3-3 घरों में इबादतें हो रही होती थी। और इसका जिक्र जो है ना, एक छोटी सी किताब है अरगवानी चोगा, उसमें इसका बड़ा जिक्र है। और वहां ही लूका ने यीशु को कबूल किया था। लूका वहीं आर्मी में था, ड्यूटी कर रहा था। ये इसको पता चला, यूलियस ने बताया यहाँ लोग हैं मसीही जो यरूशलेम से भाग के आए हैं, ये हर रोज इबादत करते हैं और यीशु का नाम लेकर इबादत करते हैं। तो चलो आओ देखें ये क्या करते थे। अंदर इबादत हो रही होती थी घरों में, दरवाजे के साथ लगकर कलाम सुनते, बातें सुनते। 2-3 दिन तो सुनते रहे, फिर एक दिन दरवाजा खटकाया, अंदर चले गए। वो लोग डर गए कि ये यहूदी हो, ये रूमी होकर सिपाही हमारे पास आ गया। कहा डरो नहीं, हम कलाम सुनने के लिए आए। यूलियस ने बताया जब यीशु को मसलूब किया जा रहा था मैं वहीं था, पास खड़ा रहा था। मैं यीशु जब मोज़े करता था मैं पीछे पीछे रहता था। मुझे बादशाह ने भेजा था जब यीशु की जासूसी करूं, मगर मैंने यीशु के काम देखे। रोज आकर वो बादशाह की बीवी पिलातुस की बीवी को बताया करता था और वो भी यीशु पर ईमान ले आई। तो अंताकिया में गए और वहां घरों में बातें शुरू की और उसका फायदा क्या हुआ वहां लिखा है। सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाया। मसीहत यरूशलेम से शुरू हुई मगर बड़ा जोर अंताकिया में हो गया और वहां बड़ी कलीसिया आबाद हुई, वहां बड़ा काम हुआ। तो मेरा बताने का मतलब जब हम खिदमत नहीं करते ना तो खुदा मुसीबत डालता है और मुसीबत डाल के वो कहीं ले जाता है और फिर वो बड़े काम करवाता है। हालेलुया। इसलिए बड़े ध्यान से खिदमत करें और खिदमत में आने से पहले ना बड़ी तवज्जो करके सोचा करें, फिर ये बेड़ा उठाएं। मगर जिनको खुदा ने बुलाया है वो भले तौबा करे ना करे, उनसे वो खिदमत लेना जानता है। और खुदा क्या कहता है, मैंने तुम्हें मां के पेट ही से चुन लिया। कुछ लोग हैं वो चुने जाते हैं और ये इसकी वजह नहीं कि ऐसे ही खुदा ने चुन लिया। उनकी माएं दुआएं करती है, ऐ खुदा मुझे बेटा दे, तू देगा तो मैं तुझे दे दूंगी, मैं तेरा खादम बनाऊंगी। तो क्या होता है फिर खुदा पेट में उसको चुन लेता है, क्योंकि मां की दुआओं के वसीले खुदा उस पर बड़ा रहम करता है। हालेलुया। और दाऊद भी कहता है, ऐ खुदा तूने मुझे मेरी मां के पेट ही से चुन लिया था और 16 साल की उम्र में महसूस कर लिया। तो याद रखें हम दुनिया में आए हैं किसी मकसद के लिए और किसी और चक्कर में पड़ गए हैं। हम आए किसी और मकसद के लिए, काम कुछ और कर रहे हैं दुनिया में। और आज अगर देखा जाए लोगों को, मसीह लोगों को, तो मिशन क्या है, मसीहों का असूल क्या है, मसीहों को क्या करना चाहिए। मसीहों के ज़िम्मे ये जिंदगी नहीं जो आप गुजार रहे हो, मसीहों की ज़िम्मे ये जिंदगी है जहां एक मसीह हो वहां सबको बदल के रख दे। हालेलुया। तो हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, जहां एक मसीह होता है ना वो तड़प तड़प के मर जाता है। खुदा तो मैं कलामा मेरी ड्यूटी है, ये सब मुझसे नफरत करते हैं तो ये क्या होगा, कोई काम खराब ना हो जाए, खुदा मुझे यहाँ से निकाल, पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करो, मैं वहां अकेला हूं, मुझे बड़ा तंग करते। ऐसे ही है नहीं, ये बड़ी गलत बात है। मैं छोटी सी एक बात बताऊंगा।
میں جہاں سعودیہ میں تھا 91 میں گیا 93 میں آیا, سارے مسلم تھے اور جس سائڈ پہ میں کام کر رہا تھا سب میرے خلاف تھے, اور ایک شخص تھا مسلم, وہ مجھ سے جھگڑا کرنا چاہتا تھا, مگر میں نے ہمت نہیں ہاری, میں آرام سے اس سے باتیں کرتا تھا, اس سے کوشش کرتا تھا. ایک دن پھر تھوڑی سی دوستی ہوئی, پھر تھوڑی ہوئی, پھر میں نے اس کے کمرے میں جانا شروع کیا. میں نے اس کو یہ احساس دلایا کہ مجھے اسلام سے بڑی محبت ہے, اس کے ساتھ قرآن پڑھنا, سننا, مجھے بتا اچھی باتیں. پھر میں نے اپنے گھر وہاں کمرے میں لانا شروع کیا, اس کو سکھانا شروع کیا, اور وہاں جتنے میرے مخالف تھے ایک بندہ نہیں بدلا, بڑا سخت تھا, نہیں تو ورنہ سب میری عزت کرنے لگے. وہ بندہ ایک جھگڑا ہوا تو میں نے ان کی صلح کرائی, تو وہ کہتا ہے یہ کرسچن ہو کر اس نے دعا کی ہماری مٹھائی پہ, صلح کی مٹھائی تھی, اس پہ میں نے دعا کر کے سب میں بانٹی, تو وہ تو لال پیلا ہو گیا, اس نے دعا کی ان کی. بھائی وارث کوئی گل نہیں, بس دیکھو تھی انتظامیہ کا کام ہے. بھائی انتظامیہ تم لوگ آرام سے بیٹھے ہو, ہر بار بھائی وارث کو بولنا پڑتا ہے, تھوڑا سا خود ذرا اس کو دور دور بٹھاؤ ذرا. تو ہم جہاں بھی ہوں, آپ ڈیوٹی پہ ہیں, کہیں کام کر رہے ہیں, کہیں سفر میں ہیں, آپ اکیلے ہیں, آپ کے اندر گواہی ہونا چاہیے, آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے, آپ کے اندر دلیری ہونی چاہیے. یہ نہیں ہم گھٹنا شروع کر دیں, مسیح کے لوگ ایسا نہیں کرتے. یہ لوگ انطاکیہ گئے, ان پر ظلم ہوا, ان کو مارا گیا, ان کو لوٹا گیا, ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا. یسوع نے کہا تھا, یہ ایسے بھاگ کے نہیں گئے, آپ دیکھیں پڑھ کے دیکھیں, لکھا ہے یسوع نے کہا تھا جب تمہیں ایک شہر میں ستایا جائے دوسرے میں چلے جانا. تو یروشلم میں ستائے گئے اور یہ انطاکیہ میں چلے گئے, اور وہاں لوگوں نے یسوع کو قبول کیا. ہلیلویا. اور پطرس کے بارے میں, پطرس کو جیل میں ڈالا اور رات کو خدا کا فرشتہ آیا, پطرس کی بیڑیاں کھول دی, زنجیریں کھول دی, جیل کے تالے توڑ دیے, اور پطرس کو نکالا باہر اور کہا چلو اپنے گھر جاؤ. اور وہ واپس آیا اور اس نے دیکھا کلیسیا دل و جان سے دعا کر رہی ہے. ہلیلویا. جب کلیسیا دعا کرتی ہے نا پھر بندھن ٹوٹتے ہیں. میں اس پر بہت ایمان رکھتا ہوں. جب آپ اپنے پاسٹر کے لیے, جب آپ اپنی خادم کے لیے, جب آپ اپنے بھائی کے لیے, بہنوں کے لیے جو خدمت میں ہیں, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے, ان کے لیے خاص دعا کریں گے, خدا انہیں جلال کے لیے استعمال کرے گا. اور کلیسیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. کلیسیا بات سمجھیے صرف پاسٹر کی ذمہ داری ہے, خادموں کی ذمہ داری ہے, وہ ہمارے لیے آئے دعا کریں, مگر نہیں. یہ جو کلیسیا میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے جاتے ہیں, ان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ خادموں کا بازو بنے, وہ خادموں کا ساتھ دے. پہلی بات گروپ بنتے ہیں تو جو بن جائے وہ خادم کے خلاف ہی سازش شروع کر دیتے, اور میں کلام سنا رہی ہوں, اور میں کلام سنا دیتا ہوں, ابھی مجھے پاسٹر کی ذرا کیا ضرورت ہے. نہیں, پاسٹر ہماری میٹنگ میں نہ آئے. یہ چھوٹی چھوٹی میٹنگوں پاسٹر صاحب کو بلانا نہیں چاہتا. کیوں؟ نہیں, اب ہم خود کر لیتے ہیں. بغیر استاد کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اور ترقی کا راز متفق ہونے میں ہے, اکیلے ہونے میں ترقی نہیں ہے. ترقی, ہماری روحانی ترقی, یہ متفق ہونے میں ہے. اور خاندان بھی اسی وقت بڑھتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں جب خاندانوں میں صلح ہوتی ہے, مل کر چلتے ہیں, بڑے چھوٹے کا احترام کرتے ہیں, وہ خاندان ترقی کرتے ہیں, وہ خاندان بڑھتے ہیں. جس خاندان میں ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے وہ خاندان ترقی نہیں کرتا. جس کلیسیا میں ہر شخص اپنی مرضی کر رہا ہے وہ کلیسیا ترقی نہیں کرتے. جو کلیسیا اپنے پاسبان کے لیے دعا نہیں کرتی, اس پاسبان کی زندگی میں معجزے نہیں ہیں, خدمت نہیں ہے کوئی بڑی. یہ ضروری ہے کلیسیا اپنا کام کرے, اور کلیسیا نہیں اٹھنا ہے, لوگوں کو بدلنا ہے, لوگوں کی زندگیاں بدلنی. دیکھیں, میں خادم ہوں, میں ہر جگہ نہیں جا سکتا. مجھے پتا ہے میرے جتنے ساتھی ہیں
हर रोज ये किसी से मिलते हैं, रोज किसी में बैठते हैं, कोई ना कोई बात करते हैं, कोई ना कोई गवाही देते हैं। तो उस गवाही का फायदा क्या होता है? लोगों को चर्च लेके आते हैं और वो गवाहियों से लोगों बदलते हैं और लोगों की जिंदगियों में काम होता है। जिस तरह एक दानिशमंद खुदा का खादम पास्टर ये कह रहा था, एक चरवाहा होता है जो भेड़ें चराता है और भेड़ें होती है। तो वो कलाम कर रहा था, मैं सुन रहा था, वो कह रहा था चरवाहा बच्चे नहीं देता, बच्चे भेड़ें देती हैं। तो मैंने कहा ये क्या कह रहा है? तो मैंने कहा इसको जरा सुनना चाहिए। फिर मैंने गौर से सुना उसके कलाम को, तो वो बता रहा था चरवाहे का काम है भेड़ों को चराना, भेड़ों को अच्छा खाना देना, भेड़ों को वक्त पर पानी देना, उनकी देखभाल करना, और फिर भेड़ें बच्चे पैदा करती हैं, फिर गला बढ़ जाता है। इसी तरह खादम चरवाहा है, कलीसिया भेड़े हैं, और भेड़ों को उसमें लाना कलीसिया की जिम्मेदारी है। कलीसिया खादम के बाद लोगों को लाती है कि जी आए। और हम जब खिदमत करते हैं, खास तौर पर मुस्लिम में, दूसरे लोगों में, अपने लोगों में बहुत जगह जगह जाते हैं, तो क्या होता है? हमारी कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई गवाही दे रहा होता है उनको, हमारे पास्टर साहब हैं, वो दुआ करते हैं, वो फलां ठीक हो गया, फलां ठीक हो गया, वो उसको गवाही देते हैं, उसका ईमान बढ़ जाता है। और जब उसका ईमान बढ़ जाता है, वो कहते हैं अपने पास्टर साहब मुझे बुलाओ, मुझे अपने चर्च आने का बताओ, मैं आऊंगी, या मैं आपके पास्टर साहब को अपने घर बुलाना चाहती हूँ। तो क्या होता है? फिर नए लोग मसीह में आते हैं। बहुत सारे लोग गवाहियां नहीं देते, अभी बोलने में मुश्किल, झिझक को खत्म करें, गवाही बोले, गवाही दें, और गवाही सिर्फ यहां खड़े होकर नहीं, अच्छी बात है यहां भी देनी चाहिए। गवाही लोगों की जिंदगी में डाले, लोगों के अंदर भर दें गवाहियां अपनी। और सबसे बड़ी गवाही क्या है? सबसे बड़ी गवाही आपकी मेरी वो क्या है? सुनिए, सबसे बड़ी गवाही क्या है मेरी और आपकी, जिससे लोग बदल सकते हैं? मैंने देखा है कोई शख्स बड़ा खूबसूरत कलाम सुनाता हो मुझे, या आपको उसके बारे में पता हो ये शख्स ठीक नहीं, इसका किरदार अच्छा नहीं, आपको उसके कलाम का मजा नहीं आएगा, बरकत ही नहीं मिलेगी, दिल नहीं चाहेगा उसका कलाम सुनने। जिस शख्स के किरदार को आप जानते हैं कि इसका किरदार अच्छा नहीं, इसकी सोच अच्छा नहीं, ये तो गालियां भी देता है, कलाम भी सुनाता है। कल एक नौजवान मेरे पास था बैठा हुआ, वो बड़े टूटे दिल से, वो खुद कभी चर्च नहीं आया, मगर मुझे कह रहा था पास्टर साहब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं क्या जी क्या? मैं एक जगह गया, वहां एक पास्टर था, कितने पास्टर उसके अंडर थे, मैं उनका भी नहीं नाम लूंगा, उसका भी नहीं लूंगा, मेरा किसी को बदनाम करना नहीं, एक सिखाने का अमल। मैंने बताया हम किस तरह लोगों को बदल सकते हैं, ये बताने लगा। तो वो बता रहा था, जब मैंने उसको देखा, मैं थोड़े दिन वहां रहा, तो वो तो गालियां भी देता था, वो तो बड़े बुरे काम भी करता था, और पास्टरों का लीडर भी था। उसके बाद मेरा जी नहीं चाहा कि मैं उसकी इज्जत करूं। क्या मतलब? मैंने कहा वो कौन सी चीज है जो आपकी दुनिया को बदल सकती है? किरदार। क्या है? किरदार। आपकी जुबान दूसरों को बदल सकती है। आपकी जुबान अच्छी नहीं, आप कितनी अच्छी गवाही दें किसी को, आपकी कोई गवाही नहीं सुनेगा। आपका किरदार अच्छा नहीं, आप गालियां भी देते हैं, कलाम भी सुनाते हैं, कलाम बड़ा बेहतरीन आप सुनाते हैं, मगर किरदार अच्छा नहीं, कोई नहीं आपका सुनेगा। जिसको आपके किरदार का पता है वो आपके कलाम पर कभी तवज्जो ही नहीं देगा। मैंने अभी कल ही ये बात सीखी उस नौजवान, कहता मैं बड़ी इज्जत करता था, मगर जब मैंने उसके ये काम देखे मुझे वो पसंद नहीं, मैं उसके बात ही नहीं सुनता। ये बात है, हम बदल सकते हैं लोगों को, हम लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। हम जहां काम करते हैं, जहां ड्यूटी करते हैं, जहां मिलते हैं, जिस घर में हमारा आना जाना है, वो अगर आप चाहते हैं कि उस घर में तब्दीली आए, मेरा एक दावा है कि मैं अपने आप को सिखाता हूं, अगर किसी घर में मेरा आना जाना है और मैं चाहता हूं और वहां मेरे जाने से कोई तब्दीली नहीं आई, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं अपने आप को कहता हूं। क्यों? इसका मतलब मुझ में सलाहियत कोई नहीं किसी की सोच को बदलने की।
میں خادم ہوں، آپ خادم ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ پاسٹر ہیں، آپ مبشرہ ہیں. آپ جہاں جائیں، جو آپ کی قربت میں آئے، جو آپ کی وفاداری میں آئے، جو آپ کے پاس سیکھتا ہے، جس کو آپ سکھاتے ہیں، جس کے گھر میں آپ کا آنا جانا ہے، آپ کے چال چلن سے، آپ کے کردار سے اگر اس کی سوچ نہیں بدلتی تو پھر جان لے آپ کا کردار نہیں اچھا، آپ کی سوچ نہیں اچھی، آپ کی باتیں نہیں اچھی. میں کہتا ہوں بھلے کتنا اچھا کو کلام سنائے، آپ اسے جانتے ہو پرسنل، آپ کو اس کی باتیں نہیں اچھی لگیں گی. کرتے ہیں اتفاق میری بات سے؟ حقیقت ہے اتفاق میں نے تو یہ دیکھا. اور جو شخص آپ جانتے ہیں یہ سادہ ہے، یہ بہت نیک ہے، پیار کرتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، میں سے جو معمولی باتیں بتا رہا مگر وہ دل کو چھوئیں گی، وہ دل کو اچھی لگیں گی. کیوں؟ اس میں سادگی ہے. اس کے پاس علم نہیں مگر یہ سادگی ہے. یہ بہن یہ بھائی جب بولتا ہے اس کی سادی سادی باتیں ہوتی ہیں مگر دل کو چھوتی ہیں. کیوں؟ اس کا کردار چورا ہوتا ہے، اس کے منہ کی باتیں چھوئے جا رہی ہوتی ہیں. ایک حوالہ میں چاہوں گا پڑھیں. اور اعمال کی کتاب ہی میں نے کہا جی بارے میں بھی دیکھیں گے تو ہم 26واں باب یہی بات جو کر رہے ہیں نا اسی پر ذرا غور کریں گے. اعمال کی کتاب 26 باب. اور اس کی ہم 12 آیت سے 32 آیت تک. میں چاہوں گا پاسٹر صاحب آئیں ذرا ادھر میرے ساتھ تھوڑی ہیلپ کریں. اس کو پڑھے ذرا، بڑا واقعہ ہے اور ذرا اچھی طریقے سے پڑھیں. ادھر میرے پاس آئیں. 12 سے 32 آیت تک اعمال کی کتاب 26 باب 12 آیت سے 32 آیت تک. کلام خدا میں لکھا ہے، اسی حال میں سردار قائموں سے اختیار اور پروانے لے کر دمشق جاتا تھا. تو اے بادشاہ میں نے دوپہر کے وقت راہ میں دیکھا، اے بادشاہ میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گرد آ چمکا. جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پہنے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے. میں نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا. اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں. اس لیے اگرپا بادشاہ میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا، بلکہ پہلے دمشقیوں کو، پھر یروشلم اور سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کریں. انہی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے ہیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی، لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشگوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے اور سب سے پہلے وہی
मुर्दों से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। थोड़ा आगे तक जब वो इस तरह जवाब नहीं कर रहा था 32 तक तो फेस्तुस ने बड़ी आवाज से कहा, ए पौलुस तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। पौलुस ने कहा, ए फेस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूँ। चुनांचे बादशाह जिससे मैं दिलेराना कलाम करता हूँ ये बातें जानता है और मुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई उससे छुपी नहीं, क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। ए अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूँ कि तू यकीन करता है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू तो थोड़ी सी ही नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि थोड़ी नसीहत सी या बहुत से सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानिंद हो जाएं, सिवा इन जंजीरों के। तब बादशाह और हाकिम और बर्नीके और उनके हम नशीन उठ खड़े हुए और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे कि ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा कि अगर ये आदमी कैसर के यहाँ अपील ना करता तो छूट सकता था। आमीन। आमीन। सुने, जो हमने अभी पढ़ा है ये पौलुस की बातें हैं। पौलुस बिन्यामीन के कबीले का था और एक बहादुर नौजवान था और ये यहूदी था। ये यीशु पर ईमान नहीं लाया था मगर दलेर बहुत था। ईमान के साथ अपने मजहब की पैरवाई करता था, लोगों को कलाम सुनाता था ताकि तौबा करो और खुदा से डरो। और ये यीशु को नफरत करता था, कि यीशु के लोगों से नफरत करता था, यीशु के लोगों को पकड़वाता था, उन्हें कत्ल करवाता था। फिर इसने दमिश्क जाने का फैसला किया, अपने नौजवान साथ लिए घोड़ों पर सवार हुआ और इसने एक ऑर्डर पास करवाया कि जो दमिश्क में लोग मसीह पर ईमान रखते हैं उन्हें पकड़ा जाए, उनको कैद में डाला जाए। इसने लेटर लिया, बकायदा निकला और जब ये जा रहा था रास्ते में यीशु मसीह इस पर जाहिर हुआ, नूर चमका और ये घोड़े से नीचे गिर पड़ा। अब्रानी आवाज आई, इब्रानी जुबान में खुदा बोला, यीशु मसीह बोला, ऐ पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? ऐ खुदावन तू कौन है जिसे मैं सताता? जब ये गिर पड़ा आवाज आई, यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? कहा है खुदावन। खुदावन कहते हैं मालिक को। वो जान गया था ये आवाज खुदा की है, वो खुदा को मालिक कह के पुकार रहा है, ऐ मालिक तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? कहा मैं मसीह खुदावंद हूँ। हिल गया, मैं तो उसके खिलाफ हूँ, तो ये मसीह खुदावंद मुझसे बोल रहा है। आंखें अंधी हो गई गिरने से, बोल रहा था, सुन रहा था खुदा की यीशु की आवाज को। यीशु ने कहा उठ, तूने मेरे लोगों को बहुत सताया है, अब दलेर हो, अब तूने मेरे लिए काम करना है। पहले तू मेरे खिलाफ काम करता था, अब मेरे लिए काम करेगा। और ये बात हननिया को भी यीशु ने बताई कि, और यीशु ने पौलुस से कहा जितने दुख तूने कलीसिया को दिए हैं, मेरे लोगों को पकड़ पकड़ मारा है। आप अगर 7वां बाब पढ़ेंगे ना मालकी किताब, वहां भी ये लोगों को पकड़ कर लाता है। और तसिफनस नाम एक डीकन था जो कलीसिया की रहबरी करता था, उसको इसने पकड़कर पत्थरों से संसार करवाया। और वहां लिखा है 7वां बाब पढ़ेंगे, वहां लिखा है पौलुस वहां मौजूद था, इसने अपनी निगरानी में उसको शहीद करवाया। ये मसीहों को शहीद करता था। यीशु इस पर दार हुआ, ये गिरा घोड़े से। यीशु ने कहा उठ, अब तू मेरा काम करेगा और जितने दुख तूने मुझे दिए हैं अब उतने मेरी खातर उठाएगा। इसने कहा मैं हाजिर करूंगा। यीशु ने कहा उठ, सामने जो शहर नजर आ रहा है दमिश्क का, वहां हननिया नाम शख्स का पूछना, वो मसीह यीशु का शागिर्द था। कहा जाके ना हननिया का पूछना, उसके घर जाना, वो तेरे लिए दुआ करेगा, वो तुझे बपतिस्मा देगा। जब हम
ये बातें अमाल की किताब 9वां बाब जो पहली आयत से 19 आयत तक पढ़ते हैं, वहां ये बातें लिखी है और यहाँ भी लिखी है, कुछ यहाँ का मैं बताऊंगा। और वहां ये गया हननिया के पास, तो हननिया को पहले यीशु ने कहा, देख मैं तेरे पास पालूस को भेज रहा हूँ, साउल, उस वक्त इसका नाम साउल था, बाद में बदल कर पालूस रखा। तो यीशु ने हननिया से कहा, तेरे पास साउल आ रहा है, मैंने उसको भेजा है, उस पर हाथ रखना ताकि उसकी आंखें खुल जाएं और उसको बपतिस्मा देना। तो हननिया ने कहा, मैंने सुना है वो तो मसीहों को मारता है, वो तो यीशु तेरे लोगों को सताता है। कहा वो बदल गया है। तो वो गया, पूछते पचाते हननिया के घर गया, हननिया को बताया कि मैं साउल हूँ। हननिया ने कहा, हाँ मुझे यीशु ने बता दिया तो मेरे पास आ रहा है। उसको हाथ रखे, उसके लिए दुआ की हननिया ने और उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। उसके बाद फिर वो वहां की कलीसिया में मिल गया, उनमें रहने लगा, थोड़े दिन वहां रहा, बाकी लोगों को उसने वापस भेज दिया, कहा तुम जाओ, अब मैं यहाँ दमिश्क में अकेला रहूंगा। वो वहां रहा, रसूलों से तालीम पाई, उनके साथ रहा, बपतिस्मा लिया और फिर खिदमत के लिए निकला। और फिर पालूस ने यीशु की खातिर बड़े दुख उठाए, मगर जब ये यीशु में नहीं था, यहूदी था, बड़ा ईमानदार शख्स था, इसलिए तो खुदा ने इसे चुना कि ये मसीहों को ईमानदारी से पकड़ के मारता था। यहूदी था, अपने मजहब के मुताबिक वो काम करता था, तो फिर यीशु ने उसे चुन लिया। जब हमारे अंदर अच्छी सोच होती है और हम गलत चल रहे होते हैं, फिर खुदा हमें अच्छी राह दिखाता है। इसके अंदर सोच अच्छी थी मगर गलत राह पर चल रहा था, यीशु ज़ाहिर हुआ, उसने इसको लिया। फिर इसके ऊपर बड़े जुल्म हुए और फिर काफी अरसे के बाद, जब लिखा 10 साल के बाद यरूशलेम गया, उसके बाद फिर दोबारा गया, 3 बार गया, फिर इसको पकड़ा गया। वहां उनको पता चल गया कि ये जो गमलीएल का शागिर्द इतना अच्छा आदमी था, इसने यीशु को कबूल कर लिया। यहूदी इसे मारना चाहते थे, वहां इस पर बड़ा जुल्म हुआ। वहां की पलटन ने, रूमी हुकूमत, उन्होंने इसको पकड़ा, कैद में बंद कर दिया। कैद में साउल के भांजे में जाकर उस जो जेल का इंचार्ज था उसे बताया कि मेरे मामू साउल को कत्ल करना चाहते हैं यहूदी, देख उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर कसम खाई है कि हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और कल तू जब सुबह इसे निकालेगा तो वो तुझसे छीन कर इसको कत्ल कर देंगे। फिर उसने जल्दी की, रातों रात गिरपा बादशाह के पास ले गया। उसने कैसर को अपील की थी, इसलिए गिरपा बादशाह के सामने जब हाजिर हुआ तो गिरपा भी हमने सुना, जो पास्टर साहब ने पढ़ा, गिरपा बादशाह ने पूछा क्या वजह है, क्यों यहूदी तेरे दुश्मन हैं? तब पालूस बन गया था ये साउल। पालूस ने कहा, ऐ बादशाह, मैं आसमानी रोया का नाफरमान नहीं होना चाहता, यानी जो खुदा ने मुझ पर ज़ाहिर किया है मैं उसकी नाफरमानी नहीं करना चाहता। मैं भी इन यहूदियों की तरह एक बहुत दलेर था, मैं भी बड़ा बहादुर था, गमलीएल का शागिर्द था, मैं भी बड़े दयानतदारी से ये काम करता था। जब मैं दमिश्क की जगह